Namaste, I'm Sriram Kompella. I'm a PhD student at Politecnico di Milano in Milan, Italy. I'm part of a group of scholars and professionals of Indian origin currently working outside India, motivated for the cause of India. On behalf of Indian students abroad and India Facts, I welcome you all to this lecture titled Selective Tolerance Saga of Delhi Riots 2020. In the past few weeks, we have seen how freedom of expression in India is selectively offered or arbitrarily withdrawn by those who have labeled themselves progressive. We have with us today Advocate Monica Arora ji, Sonali Chitalkar ji, and Dr. Prerna Malhotra ji, all three co-authors of Delhi Riots 2020, The Untold Story, originally supposed to be published by Bloomsbury. The publisher had distributed a small number of copies ahead of its formal release, but then backed out at the last minute because of pressure brought on by entrenched anti-Hindu forces. Stepping up quickly to counter this last-minute decision by Bloomsbury, Garuda Prakashan agreed to publish this book. The book had a pre-run order of 20,000 copies, making it one of the most sought-after books to be published in India in recent times. The order of the talk today will be Dr. Prerna Malhotra ji first, Sonali Chitorkar ji next, and then we will have Monica ji. I will introduce each speaker in turn. We won't be taking any direct questions from the audience due to time constraints. However, we have collected a few questions during the registration, which will be answered by the speakers during the course of their talk. First, we have Dr. Prerna Malhotra ji. Dr. Prerna Malhotra is an assistant professor and teaches English at Ramlal Anand College, University of Delhi. She has co-authored and edited 6 books and contributed articles to numerous journals and newspapers on contemporary issues. Her specializations include, but are not limited to, English language teaching, translation studies, communication skills, and American Jewish writing. Prerna ma'am is also the recipient of the 32nd Dr. S. Radhakrishnan Memorial National Teacher Award in 2016. She is also an active social worker and human rights activist, and organized the National Seminar on Human Rights, for which she received a letter of appreciation from National Human Rights Council. Ma'am, the stage is yours. Thank you so much. In fact, it's a great opportunity offered by Indian students, Indian diaspora, the world over. First, we had a program by UK community, then Australian community, and today USA. I mean, it feels so great to be at different platforms and communicating with everyone, interacting with everyone about the book. So all this saga of the book, it all began on 21st of August. We as authors, we had in fact organized a program, a launch program, and we had communicated it to the publisher, Bloomsbury, about it. They knew about it, but then all of a sudden, the way they went back, the way they in fact withdrew from the book, it's unethical, unprofessional. And we had a very good relationship with them as authors, as it happens between authors and publishers. So our script, it was vetted by the publisher, it was vetted by their editorial team, as well as by their legal team. But then it's just because of the pressure of some vocal voices. So I would like to call them as publication mafia. They are the people who have been controlling literature festivals in India. They are the people who have been deciding who will be called scholars, who will be called, who will be made professors, who will be heading research institutes. So there have been issues, and they have been, in fact, into the limelight. They have occupied the intellectual arena for a long time. It all happened with the Congress government, which in fact restricted their place to the political field, whereas they just lent it to the left liberal lobby, liberal in fact, which has become a kind of abuse these days. They are self-proclaimed liberals, but actually they are the fascists of the first order,
wherever they are in the world, not only in India, even in USA, elsewhere, they are the fastest. And this is what they do. Like if they don't like a book, they will get it withdrawn. They will get it banned. I would like to give a few examples. In 2015, they withdrew this lobby, they withdrew from one of the literature festivals, Bengaluru Literature Festivals, just because one of the organizers, Vikram Sampath, he had refused to surrender his Sahitya Academy Award, because he said that this award has been given to me for my work. I cannot, in fact, surrender it. Secondly, there was a controversy about Tipu Sultan, and what he mentioned, he in fact signed a petition which was about this Tipu Sultan controversy and how our history is not being taught properly to the Indian people. So that man, Vikram Sampath, he has worked on ground on Mysore's history for 15 years. So that person has an authority to tell the world what is wrong and what is right. And moreover, it was his personal opinion. It had nothing to do with the literature festival, but this lobby, they withdrew from the festival just because that man, he did not fall into their trap of surrendering the award Vapsi. And I must tell you the truth about this award Vapsi gang. What do they do? You please check it. I am making this claim from this forum that only one person, Nayantara Sehgal, she has surrendered her award. Otherwise, none of them have actually done it. It was done only on social media. And none of them have surrendered the award money. So they are such hypocrites of the first order. Then this man, William Dalrymple, who is in fact self-claimed that, okay, he is the one who bullied UK Bloomsbury to get the book withdrawn. Delhi Riots 2020, The Untold Story. So that man, he is one of the organizers of Jaipur Literature Festival. And he, in fact, I mean, there was a controversy about that festival also, that one of a great dancer of this country, she is Padma Vibhushan, Dr. Sonal Mansingh. So she was not offered the main stage to speak. So they are, this lobby has been deciding what narrative will be built in the country, what publications, the major publications of the country, what they will publish and what not. What will be taught in the syllabus of the universities. And unfortunately, even in this new India, they are successful. They were successful this time too. They were successful in making the publisher succumb to their pressures and in fact withdraw from this book at the last moment. The book which was the baby of the publisher, the book which had gone through all the scrutiny of the publisher itself. So this lobby, this, you mentioned them progressive and liberal. No, they aren't. We need to redefine liberalism also. We need to redefine even, I mean, so many other terms which like what is dissent and what is freedom of expression. I mean, this selective freedom of expression when it comes to themselves, when it comes to Maoists, when it comes to terrorists, they use this term for their selective agenda. But what about the freedom of expression of these authors? What about these 3 brown women? Don't our lives matter? Don't, in fact, our voices matter? Don't we have the right to speak or write whatever we want? And moreover, we are speaking the truth. We had gone to the ground. We have the data, we have the stories, we have the videos, we have all the documents with us which claim
that the narrative built up, manufactured by this lobby is not correct. The narrative which they built up that it was an anti-Muslim pogrom. No, it wasn't. They said that it was spontaneous and one speech by Kapil Mishra, it made it happen. No, it did not. Because we have told in our book that, see, from 15th of December 2019 to 22nd February 2020, there is a conspiracy which has many stages. There are different phases in which at certain places protests are taking place. At other places, violence is taking place. And many a times during this time, many people, those citizens of the city, they had come out on the streets and they had objected to the blockage of roads. It was not the first instance when this CA supporters or the people, the citizens who had come out on the street and in which Kapil Mishra was invited. So the point is that there was a conspiracy made by urban Naxals and jihadis. And it also included some outside agencies. We talked of the funding pattern. We talked of the pattern of the writing. We talked, where the FIRs were registered and who were the ones who had registered them. So we, in fact, gathered all the details. In fact, the Muslim community in the area, they knew about the riots well in advance in the morning of 23rd. It is at 3:15, 3:30 when Kapil Mishra came to the scene. But before that, there is a school, Rajdhani School, who's owned by one Faisal, and just next to it, adjacent to it, is another school, DRP Public School, owned by a Hindu. And the children, the wards of Rajdhani School, the Muslim wards, they were taken back by their parents around 11 to 12 of the same day, because the people in the locality, the Muslim people in the locality, they said, ki aaj balwa hone wala hai. They knew about it beforehand. And moreover, the way those slingshots, they were welded. The way, the entire paraphernalia of writing was gathered over weeks, it spoke of a different pattern. So whatever we have said is truth, but unfortunately, these vocal voices, they made a noise on Twitter and got the book withdrawn. But here the issue arises, what has Bloomsbury done? What has it done to the ethics of publication industry? What has it done to the credibility of a publisher? So these are the questions which have come up. And also through this process, the entire process, this hypocrite lobby, they also have been exposed yet again. We need to expose them. We need to show their true faces to everyone, that they speak of freedom of expression. They talk so loudly about it. But when it comes to dissenting with others, when it comes to the dissenting voice like ours, then how do they behave? They get our books pulped. They pressurize publishers not to publish our books. So, but in this new India, we are not going to succumb to any such pressures. We have to speak the truth. We will be writing the truth, whether about Delhi riots or any other contemporary issue. And we are so thankful to the people of this country, to all the Bharatvanshis settled all over the globe, the way they have supported us. We are thankful to each one of them because they have stood with the truth. And eventually the truth will come out. Satyameva jayate. Satya ki jeet hogi, zarur hogi. और वो आज भी हो रही है, जिस तरह से गरुड़ प्रकाशन के साथ
हमारी किताब छप रही है और उसकी 15,000 कॉपियां एक दिन में प्री बुकिंग हो जाती है, तो ये सत्य की जीत होती है। एक सप्ताह के अंदर अगर 30,000 कॉपियां हो जाती है तो ये सत्य की जीत होती है। आज अगर यूएसए में हमारा इसका प्री लॉन्च प्रोग्राम हो रहा है तो ये सत्य की जीत हो रही है। मर्जी कितना झूठ फैला ले, झूठ झूठ के कहते हैं ना कि कोई पैर नहीं होते, पर फिर भी उसकी स्पीड ऐसी होती है कि जब तक सच जूते पहन रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया घूम कर आ जाता है, आधी दुनिया घूम कर आ जाता है। पर ये सच है कि सत्य का मार्ग कंटीला जरूर है, उसमें दिक्कतें हो सकती हैं, उसमें अवरोध हो सकते हैं, लेकिन सत्य जीतेगा। इसी के साथ ही मैं आप सबको नमन करती हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद। Thank you so much, ma'am. Especially that part about the liberals not being liberal themselves resonated almost with everybody. Thank you so much for the short and dashing talk. Now we have Sonali Chitalkar ji. Dr. Sonali Chitalkar teaches in the Department of Political Science at Miranda House, University of Delhi. She specializes in international relations with a focus on conflict resolution. She has done significant work on the former state of Jammu and Kashmir for the Peace Facilitation and Conflict Resolution Committee. Her doctoral thesis is on education policy in Jammu and Kashmir. She is currently involved in a major research project on Jammu and Kashmir sponsored by Indian Council of Social Science Research. Sonali ji, the stage is yours. Namaskar, and I thank India Facts for holding a program of this kind in which we can interact with young scholars and young students in USA. The theme of today's discussion was selective tolerance. So what I will do is I will build a small in about 3 to 4 minutes. I normally don't talk too much. Before handing the stage to my Monica ji, who will speak about the book. So I would like to take all of you to one of the leading of recent time about selective tolerance, that, and I'm quoting from Chomsky, that the smart way to keep people obedient is to strictly limit the spectrum of acceptable opinion. Very I think we lost Dr. Sonali Chitalkar due to internet connections. I'm back. Am I audible now? No, ma'am, I think there is a slight issue with your internet. Am I audible now? Yes, ma'am, this is sort of better. That seems to be a very liberal stand, and that seems to allow people to think that they are being heard and they can speak. However, it is still a selected in the intellectual world in India as well as abroad. Now, in India, we do not deal just with a limited spectrum of opinion where you're allowed to speak, but you also deal with what is called academic imperialism. And what exactly are the implications for that? Students living and studying in USA will know better that, you know, we work under the assumptions that only a certain kind of academic work or a certain kind of
I think we have an internet connectivity issue with Dr. Sonali Chitalkar. So we will move to Monica Ji first, and then we will come back to Dr. Sonali Chitalkar once we have internet fixed. So Sonali, just take care of your internet because we are unable to hear you. Just try to fix it. In the meantime, I'll start with my submissions. Sonali Ji, can you hear us? Sonali Ji, you're not audible. So can you hear us, Sonali Ji? Yes, there is a lag. Yes, please move to the next speaker. Just try to fix it in the meantime, Sonali Ji. Just try to fix it up. I think yes, it's Monica continue and we can pick up from where I have left. I will make my submissions in that time, Sonali Ji. Shriram Ji, Prerna Ji, Sonali Ji, Prakash Ji, नितिन जी, नियति, तुषार, मैं जिसको देख पा रही हूँ, जिसको नहीं भी देख पा रही हूँ, पर जिसने ये आज इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने, मैं कहूंगी हमारे यूएस ऑडियंस के सामने, कुछ लोग इटली से ज्वाइन किए हैं, इंडिया से ज्वाइन किए हैं, मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करती हूँ। आप वो लोग हैं जिन्होंने हमारी किताब को अब तक जिंदा रखा है, वरना ब्लूम्सबेरी ने कब का हमारी किताब को बरी कर दिया था। आप देखिए, हमने तो केवल किताब लिखी थी और लोग पूछते हैं प्रेरणा जी, सोनाली जी, क्या जरूरत थी किताब लिखने की, किस लिए लिखी? तो हम उनको कहते हैं कि आपके घर के पास में जब मुश्किल से 20-25 किलोमीटर दूर दंगा हो रहा होता है तो आप घर में चुपचाप बैठ नहीं सकते। आप जानना चाहते हो कि ये लोग कौन हैं जो दंगा कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो शांति नहीं चाहते, कौन है जो लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक कर रहे हैं, कौन है जो मार रहे हैं, ये इंसानियत के दुश्मन कौन है। आप चाहते हो कि पता लगाओ और दुनिया के सामने रखो। हमारा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस। हम लोग प्रोफेशनल विमेन है, जिसमें लॉयर्स है, प्रोफेसर्स है, राइटर्स है, हमारे बिजनेस विमेन है, एंटरप्रेन्योर्स है, फाइन आर्ट्स के लोग हैं। हम लोग लगभग ये हर 5-6 महीने में फैक्ट फाइंडिंग करते रहते हैं और ये हमारी कई फैक्ट फाइंडिंग्स के बाद ये फैक्ट फाइंडिंग हुई। हमने क्या किया, जैसे ही ध्यान में आया कि राइट्स हो रहे हैं और कंफ्यूजिंग न्यूज आ रही है, वी मस्ट गेट ऑन टू द फैक्ट्स, टू द बॉटम ऑफ द केस। ये इशू है क्या, कौन कर रहा है। हम लोगों ने टीम बनाई, हम 5 लोग थे, श्रुति मिश्रा जी और दिव्यांशा जी भी हमारे साथ थी। हम 5 लोग गए और वहां नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में गए, जो हमारे घर से लगभग आधे-पौने घंटे का रास्ता है। वहां गए हम लोग, और जब वहां हम गए, लगातार गए, कई बार गए, सुबह गए, दोपहर गए, शाम गए, आधी रात तक वहां बैठे रहते थे, लोगों का इंटरव्यू करते रहते थे। और बिलीव अस कि जब हम वहां पर जाते थे और आके हमें नहाना पड़ता था, कारण क्या है कि वहां इतनी राख थी, वहां घर जले हुए थे, वहां दुकान जली हुई थी, वहां पर जहां चलते थे पत्थर ही पत्थर, धूल ही धूल, ईंट ही ईंट। ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान तो है ही नहीं, दिल्ली तो है नहीं, यहाँ इतने पत्थर कहां से आए, इतनी ईंटें कहां से आए, इतने घर कैसे जला दिए इन्होंने, इतनी गाड़ियां, इन्होंने इतने स्कूटर्स कैसे जला दिए चारों ओर। ऐसा एक सीन था, मैं बयान नहीं कर सकती, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी हम याद करते हैं। वहां गए, लोगों के घर में लोगों की हत्या हो रखी थी। हम वहां पिता से मिले जिनके बच्चों को मार दिया गया था, उन बच्चों से मिले जिनके पिता को गोली मार दी गई थी। हमने लगातार वहां से जो भी ग्राउंड से रिपोर्टिंग की, और मैं हमेशा कहती हूँ ग्राउंड बोलता है, आपको लाइब्रेरी में बैठने की जरूरत नहीं होती। जब आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हो ना, वहां की हर चीज बोलती है, हर चीज बताती है, केवल आपकी इंटेंशन ठीक होनी चाहिए। हम जब वहां गए, हमने ध्यान किया कि ये अचानक हुए दंगे नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है, ये एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है। और वो कॉन्स्पिरेसी में बाहर की ताकतें भी इन्वॉल्व है, PFI जैसी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस भी इन्वॉल्व है, यहाँ के अर्बन नक्सल और जिहादी लोग भी इन्वॉल्व है। हमने एक रिपोर्ट बनाई और ये रिपोर्ट हमने मार्च में 5 लोगों ने मिलकर
इस रिपोर्ट को हमने होम मिनिस्ट्री को दिया और कहा कि इसमें आप अपनी जो एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, NIA है, उससे जांच कीजिए। ये हमारी रिपोर्ट लगभग 4-5 महीने पब्लिक डोमेन में पड़ी रही। बहुत लोगों ने पढ़ा इसको, हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल थी। बहुत लोगों ने पढ़ा, कोई भी कंडेम नहीं कर पाया। एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि ये झूठी रिपोर्ट है, क्रिटिकली एनालिसिस किया लोगों ने, पर किसी ने नहीं कहा कि फेक एविडेंस पर बनी हुई है। रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में थी, तो हमारे जो हितैषी थे उन लोगों ने कहा कि सोनाली जी, प्रेरणा जी, मोनिका जी, इसको किताब के फॉर्म में लेके आइए ना। हमने उसके बाद ये किताब की फॉर्म में लाए, जो ये किताब है हमारी। अब इस किताब की भी एक बड़ी अनूठी जर्नी रही। इस किताब के लिए हम कई पब्लिशर्स के पास गए। जैसा होता है ना, कभी श्री राम जी किताब लिखना चाहेंगे, प्रकाश जी किताब लिखना चाहेंगे, तो हम पब्लिशर्स के पास जाएंगे कि ये हमारा मैन्युस्क्रिप्ट है, आप इस किताब को छापिए। तो हम कई पब्लिशर्स के पास गए, उसमें ब्लूमसबेरी के पास भी गए। हमारे पास बहुत से प्रोफेसर हैं जिन्होंने सब पब्लिशर्स को अप्रोच किया। ब्लूमसबेरी ने कहा, वी आर इंटरेस्टेड, सीम्स टू बी अ गुड बुक, आप हमें इसका बाकी भेजिए। हमने पूरा मैन्युस्क्रिप्ट उनको भेजा, उन्होंने पूरा पढ़ा, उन्होंने कुछ चेंजेस बताए, वी वर्कड ऑन दोस चेंजेस। उन्होंने हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, वो हमारे पब्लिशर, हम उनके ऑथर्स, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इसको लीगली वेट कराएंगे। उन्होंने एक एक शब्द को लीगल टीम से स्क्रूटिनाइज करवाया, वेट कराया। उसके बाद किताब पब्लिश कर दी, पब्लिश करके 100 कॉपीज हमें दे दी। हमारे पास 1 अगस्त को ऐसी 100 कॉपीज आ गई। इन 100 कॉपीज को हमने पूरी इंडिया में कोरियर किया। जिसका हम चाहते थे, कोई इस पे कमेंट करे, कोई इस पे रिव्यू लिखे या कुछ भी लिखे, हमने उनको भेजा कि आप इसको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, आप बताइए क्या ठीक है क्या गलत है, कुछ लिखिए इसके ऊपर। उसके बाद हमें ध्यान है 20 अगस्त को हमने तय किया कि हम लॉन्च प्रोग्राम रखेंगे, और 22 अगस्त को जब लॉन्च प्रोग्राम होना था, 20 अगस्त को हमने उसका पोस्टर लॉन्च किया। पोस्टर ब्लूमसबेरी को भी दिया। ये हमारा लॉन्च प्रोग्राम रहेगा, सिस्को वेबएक्स पे रहेगा, ये हमारे सारे गेस्ट उसमें आएंगे। ब्लूमसबेरी का हमारे पास व्हाट्सएप आया, थैंक यू सो मच, वी आर ग्रेटफुल कि आपने हमें बता दिया। That's it, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कहीं कुछ नहीं। A wonderful relationship between the publishers also and the authors also. 22 तारीख को जब हम लॉन्च के प्रोग्राम में एंटर कर रहे थे, 3:30 बजे ब्लूमसबेरी इंडिया की ओर से उनके व्यक्ति का फोन आया कि मोनिका जी, certain jokers have been tweeting and tagging Bloomsbury UK and they have been pressurizing Bloomsbury India to withdraw the book. I said, what do you mean by withdraw? It's your book. You are the publisher. You published this book. How can you withdraw? And that too, if the jokers tell you to withdraw, you'll withdraw it. You signed a contract with us. You've legally vetted us. They said, ma'am, we have no problem with the book or the authors. But these jokers, this international lobbies pressurizing Bloomsbury UK, who in turn are pressurizing us. I said, please don't issue any statement. I'm just going for the launch. I can't be late for the launch. We all are very punctual regarding time. Today also we were there 15 minutes earlier than the program. So when we entered the Cisco WebEx link, and then during the program, when the program was taking place, then the first statement of Bloomsbury India came that we are standing by the authors. We are standing by the book. But this launch program is not ours. This guest list is not ours. Fair enough. ये launch program तो हमारा जिया का program था, हम कर रहे थे इसको. But they were standing by the book. They were standing by the authors. पर इतना ही बहुत नहीं था अर्बन मैक्सोस के लिए. उन्होंने और प्रेशराइज किया. ब्लूमसबेरी एक और स्टेटमेंट दो. ब्लूमसबेरी ने एक और स्टेटमेंट दिया और कहा कि वी आर विड्रॉइंग फ्रॉम द बुक. जैसे ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, इनफैक्ट हम अपने लॉन्च प्रोग्राम में थे और ऐसी कंट्रोवर्सी चल रही थी, करते 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 इंडिया में हमारे सभी लोगों ने इस किताब को खरीदना शुरू कर दिया. दिस बुक बिकेम नंबर 1 बेस्ट सेलर इन इंडिया इन द पॉलिटिकल कैटेगरी. मैं फिक्शन कैटेगरी की बात नहीं करी, मैं पॉलिटिकल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, जिसमें लोग कम किताब खरीदते हैं. उसमें भी नंबर 1 बेस्ट सेलर बन गई. इतनी जबरदस्त सेल हो गई किताब की. उसके बाद ब्लूमसबेरी इंडिया ने इस किताब को लिंक से, अमेज़न से हटा दिया. अब लोगों में क्यूरियस हो गया कि कहां से किताब खरीदे, कहां पर जाएं. वी वांट टू बाय अ बुक, दैट बुक इज नॉट अवेलेबल. और जैसे ही लॉन्च प्रोग्राम से बाहर आए, वी ऑलरेडी बिकेम द बेस्ट सेलर बुक के ऑथर्स इन इंडिया. और इसके बाद ऐसी ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सीज कि
यहाँ हम थे किताब का लॉन्च करके आ रहे हैं पर हमारा पब्लिशर ही नहीं है, Amazon पे बुक अवेलेबल नहीं है, लोग खरीदना चाहते हैं, क्या करें? तो हमने फिर नेक्स्ट डे ब्लूम्सबेरी इंडिया को एक 3 ऑथर्स की ओर से हमने उनको एक मेल डाला। हमने लिखा कि यू हैव बीन आवर पब्लिशर्स, वी आर योर ऑथर्स, इट हैज बीन अ वंडरफुल रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड अस। कौन जोकर्स हैं जो ट्वीट कर रहे हैं आपको और आप उसी कारण से प्रेशर में आके विड्रॉ कर रहे हैं? क्या आप ऐसे अपने अमेरिकन या अपने ब्रिटिश ऑथर्स के साथ कर सकते थे? इतना आप उनको मिसट्रीट कर सकते थे? नहीं तो इवन ब्राउन लाइव्स मैटर, even Indian lives matter, even Indian women matter, Indian writers matter, and we have a right to write. ये करके हमने लिखा, हमने कहा आप शाम को 5 बजे तक 23 अगस्त को आप हमें बताइए कि आप इसको पब्लिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज विल गो विद सम अदर ऑथर। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, अगले 15 डेज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हमने ट्विटर पे पूछा, सोशल मीडिया पे पूछा कि लोगों बताओ हम क्या करें, आप खरीदना चाहते हो, हम देना चाहते हैं, हमारा तो पब्लिशर भाग गया, क्या करें? तो people said go with आत्मनिर्भर भारत, go with an Indian publisher, go with गरुड़ा। तो हमने जो गरुड़ पब्लिशर है उनसे बात की, उनसे शाम को कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। 8 बजे के आसपास उन्होंने Amazon पे हिंदी और इंग्लिश का लिंक डाला और इनफैक्ट अपने गरुड़ की वेबसाइट पर डाला हिंदी और इंग्लिश का लिंक, और एक रात में 15,000 किताबें प्री ऑर्डर पर बुक हो गई। People paid the money, 15,000 किताबें एक रात में प्री बुकिंग पर बिक गई। और करते 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 भी 10 दिन पहले का नंबर है ये, 30,000 किताबें बिक चुकी हैं। ये प्री बुकिंग ऑर्डर है, किताब मार्केट में नहीं आई है, उससे पहले ही बिक गई है ये किताब। हम यूएस लॉन्च के लिए अभी आने वाले हैं, हम यूके लॉन्च कर चुके हैं, हमारा ऑस्ट्रेलिया लॉन्च कल हुआ है, हमारा विद इन नेक्स्ट 10 डेज साउथ अफ्रीका लॉन्च है। ये लॉन्चेस कौन करा रहा है? हम लोग तो केवल वहां गए थे और हमने राइट्स का सच दिखाने की कोशिश की थी। वो जो अर्बन नक्सल जिहादी इकोसिस्टम है, इसने हमें खत्म करने की कोशिश की। और जो हिंदुस्तान का और भारतवंशियों का इकोसिस्टम है, जो इंडिया में है और इंडिया से बाहर है, वो सब हमारी सपोर्ट में आ गए। उन्होंने कहा मोनिका जी, सोनाली जी, प्रेरणा जी, हम खरीदेंगे इस किताब को, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप लिखिए। तो तभी से प्रेरणा जी ने कहा ना कि हम आप सभी को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, आप सभी का अभिनंदन करते हैं कि आप लोग हैं तो आज हम हैं और हमारी किताब है। अब प्रश्न उठता है कि ये इकोसिस्टम के लोग कौन हैं जिन्होंने इस किताब को खत्म करने की कोशिश की? ये इतना डर कैसे गए इस किताब से? तो जो हमने सोशल मीडिया पर देखा, हमने भी आपकी तरह ही देखा। तो जब लॉन्च प्रोग्राम हमारा चलना था, उससे एक दिन पहले से क्या हो रहा था, एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस स्वरा भास्कर वो ट्वीट करती है, ब्लूम्सबेरी तुम ये किताब कैसे छाप सकते हो? उसके बाद निधि राजदान एनडीटीवी की जर्नलिस्ट रही है, वो ट्वीट करती है, ओह दिस इज न्यू इंडिया, ऐसी किताबें छपेंगी। उसके बाद आतिश तासीर जो अफगान अमेरिकन है, जिसने टाइम्स मैगजीन के लिए वो आर्टिकल लिखा था, मोदी डिवाइडर इन चीफ, और उसके बाद मोदी जी थंपिंग मेजॉरिटी से जीत कर आए थे, तो वो लिखता है, अरे कुछ करो, इस किताब को रुकवाने के लिए कुछ करो। ब्लूम्सबेरी तुम्हें देखना चाहिए किन ऑथर्स के लिए लिख रहे हो, और ऑथर्स तुम्हारी भी एक जगह होती है, हर चीज की जगह होती है, तुम कैसे ब्लूम्सबेरी के साथ जा सकते हो? वहां से विलियम डैलरिम्पल, हम तो जानते भी नहीं थे इन लोगों को, वो जो जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल का को फाउंडर है, लॉन्ग टर्म वीजा पे 30 साल से जो इंडिया में आता जाता रहता है, वो लिखे हाँ मैं कर रहा हूं, हाँ मैं कर रहा हूं, यानी मैं किताब को किल कर रहा हूं। वहां वो कांग्रेस का जो स्पोक्स पर्सन टाइप का व्यक्ति है, वो साकेत गोखले लिखता है, वो शैंपेन रिजॉइस, वी कुड लिटरली कैंसिल द बुक। आप देखिए ये इकोसिस्टम क्या है, ये रिश्ता क्या है। यहाँ बॉलीवुड के लोग भी हैं, यहाँ प्रोफेसर्स भी हैं, यहाँ जर्नलिस्ट भी हैं, यहाँ राइटर्स भी हैं, यहाँ ऑथर्स भी हैं, यहाँ लिटरेरी फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज करते हैं ये लोग भी हैं। ये एज अ माफिया सामने आए, एज अ माफिया आए और कहा कि दिल्ली राइस पे जो किताब लिखेगा वो केवल राणा अयूब जैसे लोग ही हो सकते हैं। अरे मोनिका जी, प्रेरणा जी, सोनाली जी, आप कैसे लिख सकते हैं? यानी ये कंट्रोल करते हैं, दे आर गेटकीपर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये तय करेंगे कौन किताब लिखेगा, कौन किताब नहीं लिखेगा। हम सॉवरेन डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, we are governed by rule of law, we are governed by the Constitution of India, we have equality, liberty, we have
right to say whatever we want within reasonable restrictions. Who are these people who are of fascist mindset? Who are these intolerant people who want to cancel our book? And they literally cancelled our book. तो इसीलिए, और इस किताब में है क्या ऐसा? अगर मैं किताब की बात करती हूँ कि किताब में ऐसा क्या था कि ये लोग डर गए. इनफैक्ट मैं आज देख रही थी, प्रेरणा जी, सोनाली जी, आज भी जो एक सोशल मीडिया में चल रहा है कि पुलिस के पास कुछ डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स आई है कि जो बड़े बड़े नाम हैं और ब्रेन्स हैं, इनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है पुलिस का. तो इनके बड़े बड़े न्यूज पोर्टल्स में, वेबसाइट्स पे जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, अरे these are esteemed people. These are esteemed people. How can the police go after them? इनको ये पता नहीं है कि हिंदुस्तान है where everybody is equal in the eyes of law. अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो होता है तो मैं हूं या आतिश तहसीर है या निधि राजदान है या कोई भी हमारे घर के बाहर काम करने वाला है, everybody has a right to speak and right to write. ये कौन है अर्बन नक्सल्स जो नहीं चाहते कि हम सच दिखाएं? और हमने सच क्या दिखाया? अगर आप देखेंगे इस किताब में, इस किताब के पहले 3 चैप्टर्स में हम बताते हैं कि जो माओइस्ट स्ट्रैटेजी होती है, माओइस्ट टैक्टिक्स क्या होती है, वो कैसी होती है भारत के टुकड़े टुकड़े करने की. हम माओइज्म के डॉक्यूमेंट्स को कोट करके बताते हैं कि जब आपके और हमारे भाई बहन या बेटे जब कॉलेज में जाते हैं, तब तक तो वंदे मातरम बोल रहे होते हैं, देश भारत माता की जय बोल रहे होते हैं. कॉलेज में जाते और धीरे धीरे वो एंटी इंडिया, एंटी आर्मी, एंटी स्टेट, एंटी मोदी, एंटी हिंदू कैसे हो जाते हैं. ये जो सफर है ना भारत माता की जय से लेकर भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसका हम पर्दाफाश करते हैं पहले 3 चैप्टर्स में कि ये ब्रेन वॉश कैसे करते हैं, ये कैसे फीस का मुद्दा उठाते हैं, ये कैसे विमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा उठाते हैं, ये कैसे दलित एम्पावरमेंट का मुद्दा उठाते हैं और उसको ले जाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे तक. और ये कैसे कैसे अफजल गुरु जैसे जिन्होंने पार्लियामेंट पे अटैक किया था उनकी बरसी मनाते हैं. तो ये हम एक्सपोज करते हैं इनको फर्स्ट 3 चैप्टर्स में. नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड हम आते हैं. हम कहते हैं कि ट्रिपल तलाक, राम मंदिर और इन सब इश्यूज पर कहीं ना कहीं जब सुप्रीम कोर्ट ने और गवर्नमेंट ने लॉज पास किए या लॉज को रीटरेट किया, ये लोग घबरा गए. सीए पर जो ये अर्बन नक्सल और जिहादी फोर्सेस है, इन्होंने मुस्लिम्स को भड़काना शुरू कर दिया. जिनको पता नहीं था सीए क्या होता है, भड़काया कि सीए इज एंटी मुस्लिम, जबकि सीए क्या कहता है कि जो पड़ोस के 3 इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उसकी जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू है, सिख है, ज्यूज है, क्रिश्चियंस है, पारसी है, बौद्ध है, जो इस्लामिक डिस्क्रिमिनेशन के कारण से भागकर हिंदुस्तान आ गए हैं, 5 साल से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनको यहाँ की नागरिकता, सिटीजनशिप दी जाएगी. यही कहता है सीए. सीए का हिंदुस्तानी से कोई लेना देना है ही नहीं, ना यहाँ के हिंदू से, या ना मुस्लिम से, ना क्रिश्चियन से. वो जो कहते हैं जो बाहर से आ रहे हैं इन 3 देशों से, उनको हम नागरिकता देंगे. पर मिस इन्फॉर्मेशन क्या फैलाई गई, हाउ सीए इज एंटी मुस्लिम, ऑल द मुस्लिम्स विल बी थ्रोन आउट ऑफ इंडिया. गलत था ये कहना. इसके बेसिस पर जामिया मिलिया इस्लामिया और बाकी जगह पर लिटरली दंगे भड़काए गए. हर जगह पर पेट्रोल बॉम्ब्स फेंके गए, एसिड बॉम्ब्स फेंके गए, और वहां पर स्कूल बसेस को टॉर्च किया गया. रेजिडेंशियल एरियाज में घुसकर वहां पर उत्पात मचाया गया. पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया, खूब तेज मारा इन लोगों को, दंगाइयों को. भागते हुए गए कोर्ट में. आज तक तो कोर्ट्स भी इनके कई बार फेवर में कई बातें बोल जाती थी. भागते हुए गए कोर्ट्स में, और उस समय सोशल मीडिया में आप और हम लोगों ने मिलकर जिसके पास जो वीडियो था वो सब वीडियोस सोशल मीडिया में डाल दिए कि देखो ये लोग क्या कर रहे हैं. तो कोर्ट ने कहा दंगा बंद करो, उसके बाद हमारे पास आना. तो कोर्ट से कुछ नहीं मिला इनको, वापस आए, लाठी खाने को तैयार नहीं थे. इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया. स्ट्रैटेजी क्या लेकर आए, औरतों और बच्चों को आगे कर दो, औरतों और बच्चों को आगे कर दो कि पुलिस इनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं करेगी. तो शहीन बाग जैसे धरने आपके और हमारे घरों के बाहर कर दिए उन्होंने. जहां जहां पर मस्जिद थी उसके पास, हर जगह मस्जिद के पास ही ये धरने हुए हैं. ये ऑल इंडिया फिनोमिना है.
क्योंकि वहां रेडिकलाइजेशन और मोबिलाइजेशन बहुत इजी हो जाती है। और जो शाहीन बाग को कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट कहता है, प्लीज रेफ्यूट मी ऑन फैक्ट्स। अगर मैं फैक्ट्स बताऊंगी जो हमने इस किताब में भी कहे हैं कि शाहीन बाग में जब वहां पर मुस्लिम बच्चों को और महिलाओं को बिठाया गया, स्टेज पर तो कॉन्स्टिट्यूशन था और तिरंगा था, लेकिन जो ऑडियंस थी वो मैक्सिमम बुर्का क्लैड विमेन की थी। जो स्लोगन्स थे, हमें चाहिए जिन्ना वाली आजादी, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और क्या हिंदुओं की कब्र खुदेगी, ये सब इस पूरी एजिटेशन का हिस्सा थे। पोस्टर्स थे वहां, पोस्टर्स में मां काली को बुरके में दिखाया गया। पोस्टर्स में जो मैरिड विमेन है, मैंने भी बिंदी लगा रखी है, हम तीनों ने बिंदी लगा रखी है, मैरिड विमेन को इन्होंने बुरके में दिखाया गया। और वहां पर दिखाए थे स्वास्तिक है, स्वास्तिक को झाड़ू से पीटा जा रहा है, ये इनका सेक्युलरिज्म है। और उसके बाद जो मीडिया है, एक ही तरह का मीडिया लाउड होगा जी न्यूज नहीं आ सकता, रिपब्लिक नहीं आ सकता, एक ही मीडिया वहां पर आएगा। ये डेमोक्रेसी नहीं थी। They became an island in this democracy, जहां पर कर्फ्यू था। ये अपने आप में अपनी सत्ता चला रहे थे, वो भी पब्लिक स्पेसेस पर, कि लोग वहां से गुजर नहीं सकते थे। उस सड़क से गुजरने में जहां लोगों को आधा घंटा लगता था अपने डेस्टिनेशंस में जाने में, दिल्ली से नोएडा 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे लग रहे थे, और लगभग 101 दिन तक। उसके बाद लगातार यहाँ रेडिकलाइजेशन किया गया। 6 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, उनके वीडियोस आपने देखे होंगे, श्री राम जी सभी ने देखे होंगे, जिसमें वीडियोस में वो कह रहे थे कि हम मोदी और अमित शाह को जान से मार देंगे क्योंकि वो हमें कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल देंगे। सलमान खुर्शीद जी, एक लॉ मिनिस्टर, वो एक बच्चे को प्यार कर रहे हैं। बच्चा माँ की गोद में भारत माता की जय नहीं बोल रहा, बच्चा बोल रहा है हम छीन के लेंगे आजादी, तुम जेल में डालो आजादी। उस बच्चे को माँ और पिताजी बोलना नहीं आता, पर आजादी बोलना आता है। और आजादी किससे लेंगे, ये तो आजाद भारत है ना। और ये लोग सब उनको प्रमोट कर रहे हैं इस प्रकार के। और शाहीन बाग जहां जहां खुले, बहुत से एरियाज में वहां पर दफ्तर खुल गए पीएफआई के। पीएफआई एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। केरला के मेरे भाई बहने जानते हैं किस प्रकार से रेडिकलाइज करते हैं केरला के लोगों को, बेंगलुरु में लोगों को मारते हैं और आईएसआईएस के लोगों के लिए भर्ती करते हैं केरला से। ये लोग, उनके दफ्तर खुल गए, उनकी फंडिंग हुई, इसके एविडेंस मौजूद है। अब 4th स्टेज आई, ऐसा लगा 101 दिन बीत गए हैं शाहीन बाग के आंदोलन को, और कहीं यहाँ लाठीचार्ज नहीं हो रहा। इंटरनेशनली हम इंडिया को डिफेम नहीं कर पा रहे, इतने पेशेंट कब से हो गई है मोदी गवर्नमेंट। तो इन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज की। आपके और मेरे घर के बाहर जुलूस की फॉर्म में निकले, हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी। जितने मंदिर थे उनके बाहर खड़े हुए और आजादी आजादी के नारे लगाए। लोग डर गए, मार्केट्स के लोग डर गए, रेजिडेंशियल एरियाज में लोग डर गए कि ये हमारे दरवाजे तक, हमारे बच्चों तक पहुंच चुके हैं। और उसके बाद 4th स्टेज आई, जब पिंजरा तोड़ और इन टाइप के जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स थी, जो वहां पर जगह जगह पे शाहीन बाग के ग्रुप्स को मैनेज कर रही थी, उन शाहीन बाग से औरतों को उठाकर इन्होंने मेट्रो स्टेशन रात को जाम करना शुरू कर दिया। 22 फरवरी को आधी रात को मेट्रो स्टेशन जाफराबाद का बंद कर दिया। सुबह 6 बजे जाफराबाद की रोड ब्लॉक कर दी ताकि चक्का जाम हो, लोगों को इनकन्वीनियंस हो, लड़ाई झगड़ा हो, दंगा भड़के। 23 फरवरी को दंगा भड़क गया। ये हम इसी क्रोनोलॉजी में सब कुछ बताते हैं। हमने तो बताया था ये मार्च में, उस समय पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो चल रही थी, पुलिस की कोई चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई थी। सबसे पहले अगर किसी ने सिलसिलेवार क्रोनोलॉजिकली सब बताया है तो ये हमारी इस रिपोर्ट में आया है, हमारे सब इंटरव्यूज में है। जो दंगे के विदिन 15 डेज हम लोगों ने इंटरव्यूज दिए थे। वी स्टैंड बाय ईच एंड एवरी वर्ड। तो ये जो हमने कहा है हमारी ग्राउंड रिपोर्ट पर आधारित है। हमने दिए ना, उसमें हमने जो वीडियोस लिए हैं, उसमें हमने इंटरव्यूज लिए हैं। उसमें मैंने पहले भी बताया कई जगह पर हमने प्रीति गर्ग जी का इंटरव्यू लिया। वो बेचारी तो घर में खाना बना रही थी, सडनली उसने देखा कि उसके पूरे घर को जला दिया गया। वो फर्स्ट फ्लोर पे खाना बना रही थी, उसने देखा बालकनी से बाहर कि वहां लोग भाग रहे हैं, पड़ोसी भाग रहे हैं, कि पूरी लाइन में घरों को जला दिया गया था। उसने वहां से कहा पड़ोसियों से कि आप रुकिए, मैं बच्चे को फेंकती हूँ अपने, उसको कैच कीजिए।
9 साल के 11 साल के बच्चों को एक एक करके उसने फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंका, पड़ोसियों ने कैच किया। आज बच्चे ठीक है, बच गए हैं, पर ट्रॉमा ऐसा है, बच्चे आधी रात को उठ जाते कहते हैं मम्मा वो गंदे लोग फिर तो नहीं आ जाएंगे। एंड बिलीव मी, प्रेरणा जी बताएंगी, सोना जी बताएंगी, वो लेडी प्रीति गर्ग कहती है मैं 3 दिन पहले इन बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बता रही थी कि कैसे राइट टू रिलीजन यहाँ पर है, सभी लोग इक्वल हैं, सबको फ्रीडम यहाँ पर है। कहते मैं क्या बताऊंगी उनको रूल ऑफ लॉ के बारे में। तो ऐसी ऐसी बातें हमने अपने इस किताब में कही है और हम साफ कहते हैं जो कहा है सच कहा है, सच के अलावा हमने कुछ नहीं कहा। इस सच से ये लोग डर गए। अब मैं आखिर में बात करती हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच की। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या? पार्लियामेंट पे जब अफजल गुरु अटैक करता है, टेररिस्ट का अटैक होता है, सुप्रीम कोर्ट उसको फांसी देती है, ये अर्बन नक्सल्स और जिहादी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर उसकी बरसी मनाते हैं। देखिए बरसी दादा नाना की मनाई जाती है, दादा नाना परदादा की मनाई जाती है। ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि जो टेररिस्ट है, आतंकी है, इनके दादा और नाना है? ये उसकी बरसी मनाते हैं अफजल गुरु की और क्या कहते हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अब तक जिंदा है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कातिल कह रहे हैं। क्या कहते हैं? कश्मीर भारत से अलग होना चाहिए, वी आर अगेंस्ट बेहमनिकल टिरनी, यानी कास्टिस्ट स्लोगन्स है, सेसेशनिस्ट स्लोगन्स है, एंटी सुप्रीम कोर्ट स्लोगन्स है। इसको ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। मुंबई के आजाद मैदान में रोहिंग्यास के सपोर्ट में रैली करते हैं, वहां में जो अमर जवान ज्योति है उसको तोड़ देते हैं और कहते हैं सिर्फ फ्रीडम टू रैली। राणा अयूब जैसे लोग जिनकी किताब आती है गुजरात दंगों पर और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं ट्रैश, इट्स ऑफ नो यूज, इट्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इट्स गेस वर्क, उसके बेसिस पर आज तक के इंटरनेशनल न्यूज पेपर्स में आर्टिकल्स लिख रहे हैं और ये कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच के मसीहा बन जाते हैं। वो शर्जिल इमाम वो कहता है असम और नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटकर अलग कर दो, जेल में बैठा हुआ है। इंडियन पुलिस कहती है तुम कश्मीर को काटने की बात करते हो, घर से निकल कर दिखाओ तुम, और असम को काटने की बात करते हो, तुम्हारी जगह जेल के अंदर ही है। वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसकी, क्या अच्छी सी उसने स्पीच दी है। प्रशांत भूषण वो तुम्हें ऑपोजिट काउंसिल है कुछ केसेस में, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज अ किलर ऑफ डेमोक्रेसी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस करप्ट है और उसको हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। सुप्रीम कोर्ट कहती है यू आर गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट, और वो क्या ट्विटर पे ट्रेंड चलाते हैं हम देखेंगे, यानी मोदी हम तुम्हें देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट जजेस हम तुम्हें देखेंगे, पुलिस हम तुम्हें देखेंगे। ये भारत और भारतवंशी कहते हैं डोंट वरी अर्बन नक्सल्स, हम तुम्हें देखेंगे। तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के मसीहा है, अब तक ये बहुत स्पीच करते रहे। व्हाट अबाउट आवर राइट टू राइट? वी आर आल्सो राइटर्स, वी हैव फ्रीडम टू राइट। हमारी राइट का क्या? आपने तो कुचलना शुरू कर दिया, आपने तो बैन करना शुरू कर दिया, आपने तो किताब को कैंसिल करना शुरू कर दिया। और ब्लूम्सबेरी तुम किस फ्रीडम और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हो? शहीन बाग जैसी इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट के ऊपर आप किताब लेकर आते हो, 1 महीना पहले किताब लेते हो, उसको प्रमोट करते हो, वाओ इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट। इट वाज नाइदर अ मूवमेंट नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल, इट वाज इलीगल और मैक्सिमम लोग उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे थे जेल में है या जेल की ओर जा रहे हैं। लीगल कहां से होगी? और वही ब्लूम्सबेरी हमारी किताब को अबैंडन कर देते हैं, इसकी भ्रूण हत्या कर देते हैं। और मैं एक चीज और कहूंगी, ये डिबेट है ना टॉलरेंस वर्सेस इंटॉलरेंस की, इसको इस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि हिंदुस्तान में हम कहते हैं ईशावासम इदम सर्वम, ईश्वर सब जगह विद्यमान है, कण कण में भगवान, कि मुझ में या सोनाली जी में या प्रेरणा जी में या श्री राम जी में या पशु पक्षी में, कीड़े मकोड़े में, जीव जंतु में, कहीं भी आप बात, हिंदू मुस्लिम में, इस कास्ट में उस कास्ट में कोई अंतर नहीं है। हम सब में वही गॉड्स पार्टिकल है, कण कण में ईश्वर है। हम किसी को टॉलरेट नहीं करते, हम लोगों को एक्सेप्ट करते हैं कि हम भी सच्चे हैं, आप भी सच्चे हैं, हमारा ईश्वर भी सच्चा, हमारी किताब भी सच्ची, हमारी पूजा पद्धति भी सच्ची, आपकी भी अच्छी। तो इसलिए आप अपने हिसाब से ईश्वर की प्राप्ति करो, हम अपने हिसाब से ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। हम लोग आप में भेद ही कोई नहीं है, हम सब तो एक है, उस ईश्वर की संतान है। पर आपको बचपन से क्या सिखाया जाता है? डोंट टेल मी मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, यहाँ तो मजहब सिखा रहा है जी।
आपको बचपन से सिखाया जाता है कि मदरसों में सिखाया जाता है, मॉडर्न एजुकेशन नहीं दी जाती, मदरसों में सिखाते हैं और एक किताब, एक ईश्वर, एक प्रॉफिट, एक पूजा पद्धति, वही सुपीरियर, वही सत्य, बाकी सब झूठ, बाकी सब इंफीरियर, बाकी सब के ऊपर आपको डोमिनेशन हासिल करनी है, बाकी सब झूठे हैं, इसलिए कन्वर्ट और किल। यही ब्रेन वॉशिंग के कारण से जब आप बड़े होते हैं आप बर्दाश्त नहीं करते, आप एक लॉ बर्दाश्त नहीं करते सीएए का, जिसके बारे में झूठ फैलाया जाता है कि एंटी मुस्लिम, आप दिल्ली में दंगे करते हो। आप उस नवीन की एक फेसबुक की पोस्ट को बर्दाश्त नहीं करते जो फेसबुक की पोस्ट को लिखकर बैंगलोर में दंगे कर देते हो, और आप एक स्वीडन में एक किताब के जलाने को आप बर्दाश्त नहीं करते और पूरे स्वीडन के शहर को जला देते हो। मैं मानती हूँ किसी धर्म की इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, धर्म मेरे और मेरे ईश्वर के बीच की बात है, किसी की इंसल्ट कभी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए लॉ है, लॉ उनके खिलाफ एक्शन लेगा। आपने गणेश जी की मूर्ति तोड़ी ना उस कंट्री में, कितने खुल्लम खुला आपने तोड़ दी, कोई भी हिंदू सड़क पे नहीं आया, किसी ने पूरा शहर नहीं जलाया, लॉ टुक इट्स ओन कोर्स, वो लेडी आज जेल में है। क्या क्या अपशब्द नहीं बोले जाते हैं, लेकिन कोई भी दंगा नहीं करता जी, वो कहते हैं कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, पुलिस उसको जेल में डालती है। आप अगर एक वर्ड बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप उसी प्रकार से दूसरों के प्रति इंसल्ट मत कीजिए ना। आप कैसे इंसल्ट करते हो, आपके पास ओएसी क्या बोलता है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, दिखा देंगे 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी है, जेल में जाना पड़ता है। वो एमएफ हुसैन, वो माँ लक्ष्मी की, माँ सीता की, देवियों की, भारत माता की बिना कपड़ों के तस्वीरें बना देते हैं और कहते हैं इट्स माय फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो जावेद हबीब का मैंने देखा इन दिनों, पोस्टर है कि यहाँ तो दुर्गा माँ, यहाँ तो गणेश जी भी मेरे यहाँ पे फेशियल और कटिंग के लिए आते हैं, किसने शेयर किया वो पोस्टर मेरे साथ। इज इट ओके? पीके में आप दिखाते हो भगवान शिव टॉयलेट में छुप रहे हैं आमिर खान से बचते हुए, क्या आप ऐसी बातें अपने धर्म के बारे में दिखा सकते हैं? अगर नहीं दिखा सकते तो आपको किसी भी धर्म के बारे में इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। ये आपका अपना धर्म भी नहीं देता, ये पुलिस भी नहीं देती, ये कोर्ट भी नहीं देती, ये लॉ भी नहीं देता। और इसलिए मैं मानती हूं जो सबसे बड़ा दायित्व है और जिसका निभाया नहीं गया वो दायित्व है मुस्लिम लिबरल्स का, एजुकेटेड क्लास का, उनके रिफॉर्मर्स का। कहां गए ये लोग? चुप बैठ गए हैं। जितने भी एक्सट्रीमिस्ट है वो पूरे रिलीजन को हाईजैक कर लेंगे क्या? इन रिफॉर्मर्स को आगे आना चाहिए, इनके पढ़े लिखे बच्चों को, स्टूडेंट्स को आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि ये जो फंडामेंटलिस्ट कह रहे हैं ये गलत है, हमारा ऐसा नहीं है, हम अपने प्रति भी उतने ही सजग हैं जितने आपके प्रति सजग है, इसलिए हम हमेशा कानून का पालन करेंगे, हम सर्वधर्म समभाव में बिलीव करते हैं। तो मैं मानती हूं टॉलरेंस और इनटॉलरेंस की बात ही समाप्त हो जाएगी जब म्यूचुअल एक्सेप्टेंस होगी सभी के भगवानों के लिए, सभी की किताबों के लिए और सभी की पूजा पद्धतियों के लिए। तो आखिर में यही बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगी कि मुसीबतें तो बहुत सी आई है ना, बहुत कोशिश की गई इस किताब को खत्म करने की, ऑथर्स को खत्म करने की, अभी नहीं कब से कोशिश की जा रही है खत्म करने की। आप लोगों को भी जगह जगह पर स्टोन पेल्टिंग का सामना करना पड़ता है। यहां पर अगर लॉ पास होता है कि आर्टिकल 370 35A हटना चाहिए और भारत का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे हिंदुस्तान पे इंक्लूडिंग कश्मीर लागू होना चाहिए, वहां बवाल मच जाता है। अगर सीए के बारे में हम बात करते हैं कि माइनॉरिटीज की मदद करनी चाहिए, वहां बवाल मच जाता है। अगर यहाँ कहा जाता है कि जो राम मंदिर का मुद्दा है वो एक मंदिर और मस्जिद का विवाद नहीं है, ऐसे मंदिर मस्जिद बहुत है, लेकिन ये है हमारी राम जन्मभूमि। जैसे आपका काबा है ना, आपका मक्का मदीना है, ऐसे राम जन्मभूमि है, जैसे आपका बेथलेहम है, ऐसी हमारी राम जन्मभूमि है। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी टेम्पल एंड बाबर हैज नथिंग टू डू विद यू। He was an attacker for all of India, including Hindus and Muslims. So nobody can identify with Babur anymore. तो इसीलिए वहां की बवाल मचता है जी, अमेरिका में सड़कों पर पाकिस्तानी हाय हाय शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये तो एक लड़ाई है जिसको मैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस भी कह सकती हूँ, जिसके साथ अपना एक कॉन्टेक्स्ट है। पर ये जो सिविलाइजेशंस है ना, एक सिविलाइजेशन कह रही है सर्वधर्म समभाव,
दूसरी कहती केवल हम और कोई नहीं। तो ये जो लड़ाई है ना, ये टॉलरेंस वर्सेस इनटॉलरेंस की लड़ाई है। लेट्स टीच द वर्ल्ड एक्सेप्टेंस। हम भी सच हैं और तुम भी सच हो। इसी श्रृंखला में भारतवंशियों ने इस किताब को संभाला है। इसके मामा, चाचा, नाना, दादा, ताया बन गए हैं, इसको पैम्पर कर रहे हैं। जो लिख सकते हैं वो लिख रहे हैं, जो बोल सकते हैं वो बोल रहे हैं, जो कार्टून बना सकते हैं वो कार्टून बना रहे हैं, जो पोएम और रैप बना सकते हैं वो कर रहे हैं, कुछ सीरियल बना रहे हैं, कुछ पिक्चर्स बनाने की बात कर रहे हैं। मैं हम तीनों ऑथर्स की ओर से उनका नमन करती हूँ। और आखिर में यही कह के अपनी बात समाप्त करूंगी कि देखिए, सफलताएं असफलताएं आती रहेंगी। ये कोई पहली बुक नहीं है जो हम लिख रहे हैं, ऐसी कई किताबें लिखेंगी। वो बिकेंगी, वो नहीं बिकेंगी, पर ये हमारा गिलहरी प्रयास है इस राष्ट्र के उत्थान के लिए, ये हम करते रहेंगे। तो सफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हम कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, ma'am, for that wonderful talk. It was very inspiring. Monica Arora ji is an advocate practicing before the Supreme Court of India and Delhi High Court. She has represented the government of India as well as Indian Armed Forces in several high-profile cases. She has received the Sahityasri Award from the Hindi Sahitya Sammelan for her contribution to the field of education. And today we see why from her eloquent speech. We will go back to Sonali Chitalkar ji. Dr. Sonali Chitalkar, please go ahead with the talk. Audible now? Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. I was saying, Monica ji has covered most of the points with reference to the book and the debate which it has generated. However, I would just like to point out that this book is the effort of a data-driven strategy that we undertook. We went to the field from 29th of February 2020 to 10th March of 2020, and we have met victims from in the Muslim. We have met community leaders. I think I would just like to end by saying that this book is audible. I'm sorry, we have a very switched off my video. Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Maybe please keep the video off so we can get better. Yeah, I'll keep the video off. So like I was saying that this is a data-driven research, and there is no, we are open to criticism, but we are definitely not open to banning or pulping. Therefore, we request that this book be read, and then if there is a sustained and a positive criticism, then we are willing to take it up, and in our forthcoming editions, we are willing to build up. Research is not something that is going to end with this book. Like Monica ji said, we are going to write more. Therefore, I request all the Bharatvanshis to actually get their hands on the book, read it, and give us a positive feedback. Apart from that, I would just like to say that the community, and I'm not talking about any religious community, I'm talking about the group which talks about tolerance and talks about freedom of speech in such loud words in India. I would request people to go and
see the countries in which the leftists, the radical communists are ruling. I would like them to see how much freedom of speech is there in any such country. We in Bharat are proud of having a democratic structure, not because the British gave it to us, but because it flows in our blood, it flows in our civilization, like Monica ji said, it flows in our dharma. We have a tradition of Shastrarth. So therefore, we claim the right to engage in Shastrarth. I'm very sorry, I have a very, very unstable network today. I would have spoken more on selective tolerance, but with that, I would like to say Namaskar. Thank you very much. Thank you, ma'am. It is unfortunate that we couldn't hear completely what your views were, but from whatever we understood, it had a lot of gravitas. And I'm sure the truth and the research that you've put into the book will come out and everybody will appreciate it. Now, I thank Monica Arora ji for her time today and her informative talk. My thanks and regards to Professor Sonali Chitalkar and Professor Prerna Malhotra, co-authors of the book, for being here with us today, even though some of you had troubles with the internet. I'm sure the book Delhi Riots 2020, The Untold Story will reach a massive audience and will dispel some of the myths being propagated today. I would like to thank Avthans Kumarji, Professor Ramesh Rao of India Facts, and my colleagues and friends from India studying abroad with their nationalist causes, helping us and supporting this organization and this program. We thank all of you who registered for this presentation. Thank you so much.